Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, third year class. Hopefully you are fine. So after vacations we started the rest of the chapter. We have completed up till the subphylum Trilobitomorpha. So now we have to study the subphylum Chelicerates of phylum Arthropods. So we started the subphylum Chelicerates. Chelicerates, as we know that it's belong to the class. This name is given to this phylum due to the presence of the class, and this phylum includes the familiar animals like spider, mites, ticks, and less familiar animals included in this phylum is the horseshoe crab and the sea spider. These animals have two tagmata. Tagmata, as we know, tagmata is the subdivision, is the segmentation in their body. सो नेक्स्ट टैगमेटा क्या मैं हम बात कर रहे थे कि टैगमेटा इज़ द सेगमेंटेशन इन देयर बॉडी. द फर्स्ट सेगमेंटेशन इज़ द प्रोसोमा और सिफेलोथेरिक्स. इट इज़ अ सेंसरी फीडिंग एंड लोकोमोटरी टैगमा. It usually bears eyes, but unlike other arthropod, never has antennas. Pair appendages attached to the prosoma. The first pair, called the chelicerates, are often pincer-like or ciliate that are used in feeding. They may also be specialized as halo fangs or for a variety of other fungs. Second pair, called the pedipalps, are usually sensory but may be used in feeding, locomotory, or reproduction. Pair walking legs follow pedipalps. Posterior to the prosoma is the ophistosoma, which contain digestive, reproductive, excretory and respiratory organs. सो हमने इसमें क्या पढ़ा है कि जो दी सब फाइलम चेलिसिरेट्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर टू सेगमेंटेशन है, टैगमेटा है. फर्स्ट जो है वो है प्रोसोमा, या जिसे सिफेलोथेरिक्स कहते हैं. इसके अंदर जो है वो सेंसरी फीडिंग और लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो एंटीनास नहीं होते. सेकंड जो इसका है टैगमा, उसके अंदर जिसे हम पेडिपल्स बोल रहे हैं, वो सेंसरी ऑर्गन्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं और उसके अंदर फीडिंग, लोकोमोटरी और रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट हैं. ठीक है. पोस्टीरियर टू प्रोसोमा यानी जो फर्स्ट इनका टैगमा है, उसके बाद जो है वो ओफिस्टोसोमा है, डैट कंटेन डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. नेक्स्ट पेज पर जो है वो ये आप देख सकते हो. हेयर इज़ दी representative diagram of the class. Yes, you can see it. Here is the representative animal मीरस्टोमा का. जो है आप देख सकते हो इसकी जो टैगमेंटेजा है और इनकी जो बॉडी डिवीजन है वो आपको यहाँ पर बताई हुई है. ऑफिस्टोसोमा का यहाँ पर आपको इस डायग्राम में जो है वो आपको क्लियर दिखाया हुआ है. आप अपने डायग्राम में जो है बुक की डायग्राम में जो है वो इसको क्लियर कर सकते हो. सिफेलोथोरिक्स, हेयर इज़ द सिफेलोथोरिक्स which is the first stigma that bear the sensory organs, that bear there is antennas are absent but it bears the sensory organs. So next we start the class Merostoma. Members of this class Merostoma are divided into two subclasses: Ziphosaura, that include the horseshoe crab, and the Eupatridia, that are the giant water scorpion. But the later class Eupatridia are extinct, having lived from the Cambrian period to the Permian periods. Only 4 species of horseshoe crabs are living today. One species, Limulus polyphemus, is widely distributed in the Atlantic Ocean and the Gulf of Mexico. Horseshoe crabs can scavenge sandy and muddy substrate for annelids, small mollusks, and other invertebrates. Their body form has remained virtually unchanged for over 200 million years ago, and they were cited in जो है वो आप जो है वो डिटेल से इसका चैप्टर में जो है वो 5 में पढ़ेंगे. हॉर्सशू क्रैब जो है इसकी जो बॉडी है डैट इज़ कवर्ड बाय क्रैप्सी कवर्ड द प्रोसोमा ऑफ हॉर्सशू क्रैब. Chelicerates, pedipalps, and the first 3 pairs of walking legs are chelates and are used for walking and food handling.
The last pair of appendages have leaf-like plate at their tips and are used for locomotion and digging. So this is about the horseshoe crab that belong to the subclass Xiphosaurium. ये जो था होर्सशू क्रैब्स, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि ये जो है जाइंट वाटर स्कॉर्पियन है, बिलोंग्स टू दी यूपेट्रीडिया ऑर्डर से जो है ये बिलोंग करता है, ठीक है। और ये जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया, ये जो है कैम्ब्रियन पीरियड में जो है ये एग्जिस्ट करता था और अब जो है वो ये एक्सटिंक्ट हो गया है। नेक्स्ट जो ओफिस्टोसोमा इसका है सब ऑर्डर, उसकी अगर हम बात करें होर्सशू क्रैब्स, इट इंक्लूड अ लॉन्ग अनसेगमेंटेड टेल्सन. If a wave action flips horseshoe crab over, the crab arches its ophistoma dorsally, which help it to roll to its side and flip right side up again. The first pair of ophistoma appendages cover genital pore and are called genital opercula. The remaining 5 pair of appendages are book gills, जिसके थ्रू जो है ये रेस्पायर करता है। बुक गिल्स जो हैं ये इनके रेस्पायरेशन के ऑर्गन्स हैं। गैसेज आर एक्सचेंज फ्रॉम बुक गिल। जो बुक गिल्स जो हैं ये एज वी नो डैट दीज आर्थ्रोपोड पोजेसेस द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि दूसरे आर्थ्रोपोड्स में है तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इन अरैक्निड्स या इन क्रस्टेशियंस में जो है वो डायरेक्टली टिश्यूज़ के ऊपर से होती है, और जो बुक गिल्स हैं वो जो है वो गैस एक्सचेंज होने में जो है वो मदद करते हैं। नेक्स्ट जो है इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें, इनका जो होर्सशू क्रैब्स हैं दे आर डाइएशियस, सेक्सेस आर सेपरेट हैं। रिप्रोडक्टिव पीरियड्स में जो है मेल एंड फीमेल जो है इंटरटाइडल्स एरिया में जो है वो मैट करते हैं, और जो फीमेल हैं वो अपने पेडिपल्स जो है वो यूज़ करती हैं मेल को ग्रास्प करने के लिए, और अपने जो ये एग्स हैं ये शैलो सैंड्स के अंदर, डिप्रेशन के अंदर जो है वो अपने एग्स जो है वो ले करती हैं, और एग मेल जो है वो उसको फर्टिलाइज़ करते हैं। एंड देन जो डेवलपमेंटल पीरियड है न्यू हैचेस का वो इन सैंड्स के अंदर होता है अनटिल जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है वो कंप्लीट होने के बाद ये जो है वो हैच कर जाती हैं। यहाँ हेयर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव एनिमल ऑफ होर्सशू क्रैब लाइमलेस पॉलीसेफेलम, जिसके बारे में हमने जो है वो अभी पढ़ा है। इट्स वेंट्रल व्यू, माउथ पर जो है वो चेलिसिरस आपको नज़र आ रही है। ओवरऑल बॉडी इज़ कवर्ड बाय क्रैब्स कवरिंग प्रोसोमा। जेनिटल ओपर्कुला आपको नज़र आ रहा है। गिल्स ओपर्कुला जिसे हम बुक गिल्स कह रहे हैं, जो गैस एक्सचेंजिंग में जो है वो यूज़ होंगे, वो आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। फिर वॉकिंग लेग्स जो हैं वो दिखाए हैं। टेल्सन आपको दिखाई गई है, जिसके बारे में हमने बात की थी कि टेल्सन है प्रेजेंट यहाँ पर, जो फ्लिप्स एक्शन जो है वो क्रिएट करता है, इसको जो है वो रोल करने के लिए, आगे की तरफ धकेलने के लिए जो है वो यूज़ करती है ये अपनी बॉडी को। नेक्स्ट जो है वो क्लास अरैक्निड्स आ जाते हैं। अरैक्निड्स जो हैं स्टूडेंट्स, अरैक्निड्स के अंदर जो है वो और स्पाइडर्स आ जाती हैं, ठीक है। मोस्ट मिस रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं, मिस रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम्स हैं, जिनके अंदर जो है ये नॉट ओनली स्पाइडर्स आती हैं, इसमें स्पाइडर्स हैं, मिर्ड्स हैं, जिसे ये पिसूस जो है, टिक्स हैं, स्कॉर्पियंस जो हैं, ये लाइसिस वगैरह, ये सब के सब जो है वो इस और क्लास के अंदर जो है वो इंक्लूड है। ये हार्मफुल भी हैं और बेनिफिशियल भी हैं। सम आर हार्मफुल एंड सम आर बेनिफिशियल। कुछ जो स्पाइडर्स हैं दे आर वेरी फर्सम्स एंड गॉड्सक्यू क्रिएचर्स including in this phylum. Zoologists believe that arachnids arose from the eurypetrids and were early terrestrial inhabitants. इनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ है वो यहाँ पर आपको बताई हुई है कि ये साइलोरियन पीरियड 405 to 425 मिलियन ईयर्स अगो बिफोर जो है ये अराइज्ड हुई थी, और डिवोनियन पीरियड में जो है वो टेरेस्ट्रियल जो स्कॉर्पियंस थे वो इवॉल्व हुए थे, और जो फॉसिल्स हैं अर्लीस्ट अरैक्निड्स के दे आर प्रेजेंट बाय द कार्बोनियस पीरियड्स 282-345 मिलियन ईयर्स अगो। अब नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ में आपको इसकी अडेप्टेशन बताई हुई है कि ये वाटर कंजर्वेशन जो है वो इनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म जो है वो बनाती है।
सबसे पहले बिकॉज जो अर्लीस्ट arachnids थे दे वर एक्वाटिक स्पीशीज बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे हैव अडेप्टेड for terrestrial habitat by water conservation mechanism and their impermeable exoskeletons that adapt for terrestrialism, जो इनको जो है वो terrestrial environment पर रहने के जो है वो काबिल बनाती है. Three adaptations occurs when structure present in the member of species prove useful in promoting reproductive success. इन्वायरमेंटल क्राइसिस के अगेंस्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है जब इनके अंदर जो है वो टॉलरेट करने की एबिलिटी आ गई तो फिर जो है ये टेरेस्ट्रियल जो है वो ये हैबिटेट पर सर्वाइव कर सकेंगे. लेटर अडेप्टेशंस जो हैं वो टेरेस्ट्रियलिज्म के लिए जो है वो है एवोल्यूशन ऑफ एफिशिएंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, इंटरनल सर्फेसिस फॉर गैस एक्सचेंज, अपेंडेजेस मॉडिफाइड फॉर लोकोमोशन ऑन लैंड एंड लेटर ग्रेटर deposition of waxes in the epicuticle. So there are two adaptation of these class arachnids for terrestrialism. One is the pre-adaptation जिसके अंदर जो है reproductive success का बताया हुआ है आपको, और later जो है later adaptations है जो वो है इसके अंदर excretory structure के अंदर efficient modification, gas exchange mechanism के अंदर जो है वो अडेप्टेशंस और अपेंडेजेस जो हैं वो लोकोमोशन मेकानिज़म जो लैंड पर लोकोमोशन के लिए हो सके वो अडेप्ट हुई हैं. और इनकी जो एक्सोस्केलेटन के अंदर वैक्सेस थी, एपिक्यूटिकल के अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन आई हैं ताकि इवेपोरेटिव मेकानिज़म से जो है वो ये सेफ रह सके. नेक्स्ट जो है वो आपको इनकी डिटेल फॉर्म एंड फंक्शंस जो है वो आप अपनी बुक में क्लियर देख सकते हो कि बताई हुई है कि अरैक्निड्स का सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन और इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है. अरैक्निड्स जो हैं दे आर कार्निवोर्स, फीड ऑन अदर एनिमल्स. So they hold small arthropods with their chelicerates and enzymes from their gut tract paralyze the prey, and this partially digested food is taken into the mouth. Some arachnids possesses the poisonous gland to paralyze their prey, जैसे कि स्पाइडर्स हैं. ये क्या करती हैं कि ये जो है वो इंजाइम्स जो हैं वो अपने प्रे के अंदर इंजेक्ट करती हैं थ्रू चेलिसिरेट्स, यानी ये जो चेलिसिरस हैं अपने वो जो है वो एनिमल टिश्यूज़ को जो है वो पैरालाइज्ड करने के लिए जो है वो यूज़ करती हैं. एंड आफ्टर पार्शली डाइजेस्टिव एनिमल इज़ ingested into the gut tract, and their gut tract is divided into three regions. Anterior portion is the foregut, posterior portion is the hindgut, but both develop as infolding of the body wall and are linked with cuticle. Portion of the foregut is frequently modified into pumping stomach. Hindgut is frequently a site of water reabsorption as in other animals. So the midgut between the foregut and hindgut is non-cuticle and linked with secretory and absorptive cells. Later diverticula increase the area available for absorption and storage. So stomach जो है that is present, that is belong to the foregut, एंड हाइंडगट जो है जैसे आपको यहाँ बताया गया है कि जैसे इन ह्यूमंस या दूसरे वर्टिब्रस में होता है कि डैट इज़ द साइट फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ सॉल्ट्स. सो मिडगट जो है डैट इज़ नॉन क्यूटिकल, और ये जो मिडगट का जो बेसिकली फंक्शन है वो क्या है कि यहाँ पर एंजाइमेटिक सिक्रीशन जो है वो होती है, सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट हैं और एब्जॉर्प्टिव सेल्स प्रेजेंट हैं जो फूड को जो है वो डाइजेस्ट करने के बाद जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं. नेक्स्ट जो है वो आपको इसका एक्सक्रीटरी मैकेनिज़्म बताया गया कि इसकी जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो कॉक्सल ग्लैंड और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स पर कंसिस्ट होते हैं. डाइट एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वे. कॉक्सल ग्लैंड जो हैं वो क्या है, they are actually paired thin wall spherical sacs bath in the blood of body sinuses because they have open circulatory system. तो जो coxal glands हैं directly
ब्लड साइनसिस के अंदर से जो है वो बॉडी साइनसिस के अंदर से ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक ट्यूब्यूल के अंदर, और वो ट्यूब्यूल जो है वो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू जो है वो पोस्टीरियर अपेंडेजेस के थ्रू बॉडी से बाहर जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। इसके बाद जो है सेकंड इसका जो है वो है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, दे एब्जॉर्ब वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड and empty them into the gut tract. Excretory waste are then eliminated with digestive waste. Major excretory product of arachnids is uric acid, because they faces the acute shortage of water, so their excreta is in the form of uric acid. As you have studied already कि uric acid जो है it is excreted in those animals that faces the acute shortage of water. सो एक जो यूरिक एसिड्स हैं ये जो अरैक्निड्स हैं या जो दूसरे आर्थ्रोपोड्स हैं, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड, दे एक्सक्रीट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन सेमी सॉलिड फॉर्म विद लिटल वाटर लॉस, डैट इज़ इन यूरिक एसिड फॉर्म। नेक्स्ट जो है वो इसका रेस्पिरेशन का आपको बताया, रेस्पिरेशन है विद मिनिमम वाटर लॉस, बिकॉज arachnids have few exposed respiratory surfaces. Their respiratory structure are the book lungs that are assumed to be modification of the book gills of the merostoma. Book gills क्या है? They are the pair invagination of the ventral body wall that fold into series of leaf-like lamella. You can see here the formation of book lungs in arachnids. You can see in this diagram कि book lungs are pair invagination of the ventral body wall, के जो body wall है वो एक दूसरे के ऊपर invaginate हुई या घुसी हुई है, और एक सीरीज़ की फॉर्म में, लीफ लाइक सीरीज़ की फॉर्म में, जिसे हम लैमिला बोल रहे हैं। ये here is the lamella formation in the book gills. एयर जो है वो इस बुक गिल के ऊपर स्लिट लाइक ओपनिंग के थ्रू जो है वो पड़ती है। तो जो सर्कुलेशन है, यानी जो वो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट होगा, तो उस प्रोसेस से जो है वो ब्लड फ्लो के थ्रू जो है लैमिला के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर एक्सपाइल हो जाएगी, और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगी, ब्लड के अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगी। ये ट्यूब्यूल्स जो हैं ये ट्रेकिया के साथ जो है वो, जैसे कि जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं इनके अंदर जो है वो ट्रेकिया एंड स्पाइरिकल्स जो है वो प्रेजेंट है, इसी तरह इनके अंदर भी प्रेजेंट हैं। कुछ जो अरैक्निड्स हैं इनकी जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है, लाइक कॉल्ड ट्रेकिया, ओपन टू द आउटसाइड थ्रू ओपनिंग कॉल्ड स्पेरिकल्स अलोंग द वेंट्रल और लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एब्डोमिना। ट्रेकिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स, जैसे मैंने अभी आप बताया है कि एंड हैड अ सेपरेट एवोल्यूशनरी ओरिजिन। कुछ जो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि कुछ अरैक्निड्स के अंदर बुक लंग्स जो है वो एज अ रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट है, और कुछ जो हैं अरैक्निड्स इनके अंदर जो है ट्रेकिया और स्पेरिकल्स जो है वो प्रेजेंट है, जैसे कि दूसरे इंसेक्ट्स में प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इनका ओपन है, डोर्सल एओर्टा एंड डोर्सल हार्ट के थ्रू जो है ब्लड पंप होता है इनटू द टिश्यू स्पेसिस ऑफ द हीमोसील। ब्लड जो है वो डायरेक्टली टिश्यूज़ के ऊपर जो है वो बाथ होता हुआ जो है वो ऑस्ट्रिया के थ्रू जो है वो लीव आउट हो जाता है। इसी तरह से रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है इनके अंदर हीमोसाइनिन प्रेजेंट है। इसके अलावा मीबॉइड सेल प्रेजेंट है डेट एड इन क्लोथिंग और बॉडी डिफेंस। इनके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन या दूसरे जो सेल्स हैं WBCs प्लेटलेट्स वगैरह टाइप के नहीं प्रेजेंट। सो उसकी जो रेसिप्रोकल यहाँ पर जो है वो इमीबॉइड सेल प्रेजेंट है, जो क्लोटिंग में और दूसरे उसमें बॉडी डिफेंस में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको इसके नर्वस सिस्टम का बताया हुआ है। नर्वस सिस्टम जो है वो इसका जो है वो आर्थ्रोपोड का है, कंसिस्ट ऑफ ventral ancestral arthropods laid out in pattern similar to that of the annelids, with exceptions of scorpion nervous system of arachnidids centralized by fusion of ganglia.
इसके अलावा इनमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्पेशल टाइप्स के हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इसके अलावा जो है वो दूसरे और ज़्यादा रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, सेंसरी या सेंसरी सेल जिसे हम बोलते हैं, और कलेक्टिवली इन तमाम रिसेप्टर्स को जो है वो हम सेंसीलिया बोलते हैं। जैसे कि सीटीज़ जो हैं ये हेयर लाइक जो है वो हेयर लाइक्स इनके सेंसरी सेल्स हैं, जो इनको जो है वो टच मैकेनो रिसेप्टर्स रिसेप्शंस में जो है वो हेल्प करते हैं। इसी तरह से वाइब्रेशन के रिसेप्टर्स जो हैं वो अरेक्निड्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि स्पाइडर्स जो हैं दे यूज़ वेब टू कैप्चर प्रे, determine both the size of the insects and its position on the web by vibration of the insects. सो इट्स वेरी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी एक तख्लीक है कि ये जो है स्पाइडर वाइब्रेशन रिसेप्टर्स के थ्रू बाय इंसेक्ट्स की वाइब्रेशन से जो है वो इंसेक्ट्स के साइज़ को मैयर करके जो है वो अपना जो वेब है कैप्चर करने के लिए वो बनाती है। इसी तरह से स्मॉल पोर्स जो हैं वो इनके एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट हैं, पैच लाइक, वो भी एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन है और वो नर्व सेल्स की स्टिम्युलेशंस हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो वन या मोर जो है पेयर ऑफ आइज़ प्रेजेंट है फॉर डिटेक्टिंग मूवमेंट एंड चेंज इन लाइट इंटेंसिटी। आइज़ जो हैं वो हंटिंग स्पाइडर्स की जो है वो प्रोबेबली इमेजेस जो है वो कैप्चर करती हैं। इसी नेक्स्ट जो है आपको वो इसकी रिप्रोडक्शन का बताया हुआ है। इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है डैट आर सेपरेट डाइएशियस हैं। Paired genital openings are on the ventral side of the second abdominal segment. Sperm transfer is usually indirect. Male often packages sperm in the spermatophore, which is then transferred to female. Courtship जो है वो कोर्टशिप का मैकेनिज़्म इनमें होता है, जिसे जो है वो स्पर्म इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल इन सम टैक्सा कॉपुलेशन अकर स्पर्म इज़ ट्रांसफर्ड बाय मॉडिफाइड पेडिपल्प टू द of the male. Development is direct and young hatch from egg as many mature adult. Many arachnids stand their developing and young during and after development. सो दिस इज़ अबाउट द डेवलपमेंट एंड द रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो है वो हम इनके नेक्स्ट पेज पर जो है वो इनकी सेंसरी सेल्स की आपको डायग्राम दिखाई हुई है। हाइपोडर्मस के अंदर आपको हेयर लाइक्स जो सेंसरी सेल्स जिन्हें हम सिटीज़ बोल रहे हैं वो दिखाए हुए हैं कि सिटीज़ आर प्रेजेंट। नेक्स्ट जो है वो आपको रिसेप्टर सेल्स इसके दिखाए हुए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो बी डायग्राम है वहाँ पर स्पाइडर की आइज़ की स्ट्रक्चर आपको दिखाई हुई है, लेंस दिखाए हुए हैं। ट्रांसपेरेंट जो है क्यूटिकल फॉर्म हाइपोडर्मस ऑफ दिस आई और below the lens and hypodermis are light sensitive sensilla with pigment that cover light energy into nerve impulse. So this is the eye structure of अरैक स्पाइडर। नेक्स्ट जो है इसकी क्लास मीरोस्टोमा की अरैक्निड्स की जो है वो हम फर्दर डिवीजन्स पढ़ रहे हैं अरैक्निड्स की। तो इसमें सबसे पहले ऑर्डर स्कॉर्पियनॉइडिया, जिसके अंदर जो है वो स्कॉर्पियंस इंक्लूड हैं। ये इनका हैबिटेट जो है ट्रॉपिकल टू वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स हैं। कुछ जो स्कॉर्पियंस हैं वो नॉकटर्नल हैं, यानी लाइट टाइम में निकलते वो जो है नाइट टाइम में निकलते हैं। कुछ जो है वो डायर्नल है, यानी डे और नाइट दोनों टाइम में निकलते हैं। और ये जो है वो लॉग्स यानी लकड़ियों के या स्टोन्स के नीचे जो है वो ख़ुद को हाइड करते हैं। स्कॉर्पियंस जो हैं इनका जो प्रोसोमा है डैट इज़ फ्यूज्ड इनटू शील्ड लाइक क्रैब्स। हेयर इन दिस डायग्राम जो है आपको रिप्रेजेंटेटिव एनिमल दिखाया गया है कि इनकी जो बॉडी है, इनका जो प्रोसोमा है वो शील्ड लाइक क्रैब्स में जो है वो फ्यूज़ होता है। स्मॉल चिलेट्स जो हैं वो इंटीरियरली इनके क्रैब से जो है वो इमर्ज हुए हैं। पेयर ऑफ इन लार्ज चिलेट पैलेट्स जो है ये पोस्टीरियर है। कुछ जो है ऑफिसमा जो है इसका डिवाइडेड है। इंटीरियर प्री एब्डोमेन कंटेन दिस स्लिट लाइक ओपनिंग टू बुक लंग्स और comb like tactile and chemical receptors called the pectines and genital opening. Post abdomen segment जो है that is narrow than the pre abdomen and is covered dorsally and interiorly
At the tips of the post abdomen is a sting from which it paralyzes its prey. Sting जो है इसका वो bulbular base है that has contained the venom producing gland and a hollow sharp barbing point. इंजेक्शन लाइक जो है वो यहाँ इस डायग्राम इस जगह पर जो है वो आपको नज़र आएगा, स्टिंग लाइक का इंजेक्शन। फिर इसके बाद जो है वो स्मूथ मसल्स जो हैं वो इसके विनोम की इंजेक्शन में, स्टिंगिंग की जो है वो इंजेक्शन में जो है वो यूज़ होते हैं। स्कॉर्पियंस जो है हैज़ अ विनोम दैट इज़ हाईली टॉक्सिक टू ह्यूमन, वेरी डेंजरस टू ह्यूमन। स्पीशीज़ ऑफ दिस जैनरा जैसे कि एंड्रोकोटिन्स है या कैटोरोइड्स जो हैं इंडिया अफ्रीका या मैक्सिको के अंदर जो प्रेजेंट हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन डेथ। अदर स्कॉर्पियंस फ्रॉम द सदर्न एंड साउथ वेस्टर्न एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका गिव स्टिंग्स कंपेरेबल टू वास्प स्टिंग, यानी कुछ जो इसकी स्पीशीज़ हैं वो इतनी टॉक्सिक है कि डेथ भी कॉज कर सकती हैं, और कुछ का जो स्टिंग है वो इतना है जैसे कि वास्प का हो। रिप्रोडक्शन जो है, प्रायर टू रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल स्कॉर्पियंस हैव अ पीरियड ऑफ कोर्टशिप एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स टू सेवरल आवर्स। ये जो है वो फिर मैटिंग के प्रोसेस के बाद जो है ये एग फीमेल एग ले करती है। मेल सीज द फीमेल विद हिज पेडिपल्स एंड दे रिपीटेडली वॉक बैकवर्ड एंड देन फॉरवर्ड। लोअर पोर्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फॉर्म्स spermatophore that is deposited on the ground during courtship. Male positions the female so that the genital opening on her abdomen is positioned over the spermatophore. Downward pressure of the female's abdomen on a trigger like structure of the spermatophore release sperm into the female genital chambers. After mating, arthropods are oviparous, यानी female lay eggs that develop outside the body. Many scorpions and some other arthropods are ovoviviparous, यानी development is internal, and although large yolky eggs provide all the nutrition for the development, and some scorpions however are viviparous, यानी तीनों टाइप्स की डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो इस ऑर्डर में हमें मिलती हैं। कुछ जो ओविपैरस है, ओवियो विविपैरस है, और कुछ विविपैरस है। यानी ओविपैरस क्या होगी कि ये जो है मैटिंग के बाद जो है वो एग ले डाउन करेंगे और डेवलपमेंट जो है वो बॉडी से बाहर होगी। ओवोविविपैरस क्या है कि इंटरनल fertilization leads to the internal development, and after the development is complete the egg is hatched, जो hatching है that is takes place outside the body। और वीवी पैरस क्या है कि मदर जो है वो थ्रू आउट द इट्स डेवलपमेंटल स्टेज जो है बॉडी जो डेवलपमेंटल एम्ब्रियो है उसको नरिश करती है, और जो हैचिंग है वो भी बॉडी से जो है वो इसी प्रोसेस में जो है वो बॉडी से बाहर होगी। न्यूट्रिशन न्यूट्रिटिव पास फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल एम्ब्रियो, और जो है इस तरह से जो है इनका जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो ऑर्डर एरिनिया का जो है वो डिस्कस किया हुआ है, जिसके अंदर एरिनिया जो है लार्जेस्ट ग्रुप है अरेक्निड्स का, जिसके अंदर स्पाइडर्स जो है वो इंक्लूड्स हैं। दे ऑल्सो पोजेस द पॉइजन ग्लैंड्स एंड फैंग्स। पेडिपल्स आर द लेग लाइक एंड इन मेल आर मॉडिफाइड फॉर स्पर्म ट्रांसफर। Dorsal anterior margin of the crapsey usually has 6 to 8 eyes. Slender whistle-like pedipalp attached to the prosoma to the ophisoma. Here is the diagram of this order Arinia. ठीक है। स्पाइडर्स जो हैं प्रोटीन कुछ जो स्पाइडर्स हैं, एज वी नो डैट स्पाइडर्स आर फेमस फॉर देयर सिल्क ग्लैंड दैट फॉर्म दी वेब। तो स्पाइडर्स प्रोड्यूस सेवरल काइंड्स ऑफ सिल्क्स ईच विद इट्स ओन यूज़, जो है अपने बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए बनाती हैं। इन एडिशन टू वेब फॉर कैप्चरिंग प्रे, silk is used to line retread to lay safety line that fasten to the substrate to interrupt a fall and to
wrap eggs into the case for developmental. Air current catch silk line that young spider produce and disperse them. Silk line have carried spider at great altitude 400 of kilometer. This is called ballooning. Ballooning समझ आ गई बच्चे कि ये अपने जो है वो सिल्क लाइंस के थ्रू जो है वो क्लीम करके 100 किलोमीटर्स जो है ये पहुंच सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि स्पाइडर्स जो है वो यूं हैंग हुई होती हैं, तो वो किसके थ्रू हैं? अपने सिल्क फाइबर्स के थ्रू जो है वो सिल्क लाइन के थ्रू होती हैं। और इस प्रोसेस को जो है वो हम क्या कहते हैं? बैलूनिंग। स्पाइडर्स की जो फीडिंग एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो ये जो है वो दूसरे इंसेक्ट्स पर दूसरे आर्थ्रोपोड्स को हंट करके इन्हें कैप्चर करके अपने वेब में जो है वो यूज़ करती हैं। स्मॉल वर्टिब्रेट्स हैं वो इनके प्रे अपने स्टिंग के थ्रू जो है ये अपने बाइट के थ्रू प्रे को पैरालाइज करती हैं और समटाइम्स जो है वो उसको रैप कर लेती हैं, कैप्चर कर लेती हैं अपने इस सिल्क वेब के अंदर। फिर उसके बाद जो है वेब कैप्चर करने के बाद फिर ख़ुद ये जो है अपनी बॉडी वॉल अपने पॉइजनस ग्लैंड या अपने एंजाइम्स को इंजेक्ट करके जो है उस प्रे को पंचर करती हैं, पैरालाइज करती हैं और फिर उसको जो है वो एज अ होल जो है वो इनगल्फ कर लेती हैं अपनी स्टमक में। और डाइजेस्टिव एंजाइम इन स्टमक जो है वो उसको जो है वो डाइजेस्ट करते हैं प्रे को। जो स्पाइडर का विनोम है डैट इज़ हार्मलेस टू ह्यूमन, लेकिन ब्लैक विडो स्पाइडर एंड ब्राउन रेक्यूलस स्पाइडर्स आर एक्सेप्शंस। उनके जो विनोम हैं डैट इज़ टॉक्सिक टू ह्यूमन। मैटिंग नेक्स्ट जो है वो इसके रिप्रोडक्शन का आपको बताया हुआ है कि मैटिंग ऑफ स्पाइडर्स इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स बिहेवियर डैट इंक्लूड chemical, tactile और visual signals. Female deposit chemicals called pheromones on their web or bodies to attract males. Pheromones जो हैं वो क्या होते हैं? ऐसे chemicals हैं जो reproductive purposes के लिए या किसी और दूसरे purposes के लिए same species के animals जो हैं वो अपने ही जैसे animals, अपनी ही species के animals को जो है वो attract करने के लिए या अपने behavioral mechanism को modify करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसकी डेफिनेशन भी आपकी बुक में लिखी हुई है कि फेरोमोन्स आर केमिकल डैट वन इंडिविजुअल रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट to create a behavioral change in another member of the same species. Remember that pheromones are for communication of the same species. Next endocrine glands के चैप्टर में हम जो है वो pheromones को डिटेल से पढ़ेंगे। सो हेयर जो है यहाँ हमने जस्ट ये डिस्कस किया कि ये जो एरीनिया है ऑर्डर्स के मेंबर स्पाइडर्स जो हैं फेरोमोन्स को है ये रिप्रोडक्टिव मैकेनिज़्म के लिए यूज़ करती हैं। सो जो है वो आफ्टर कॉपुलेशन आफ्टर मैटिंग जो है वो जो है इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद जो है ये अपने एग को 3000 एग जो है वो 1 टन के अंदर जो है वो ले डाउन कर सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो ऑर्डर है ओपिलियंस। ओपिलियंस जो है हार्वेस्ट मैंस और डैडी लॉन्ग लेस जो है कॉमनली इनको हम जो है वो कहते हैं। इनकी जो बॉडी है डैट अपीयर्स ओविड यानी ओवल शेप में जो है ये हमें नज़र आती हैं। लेंग्स इनकी लॉन्ग है, सिलेंडर्स हैं। मैनी हार्वेस्टमेंट्स आर ओमनीवोर्स यानी ये प्लांट पर भी एक्सेप्शंस हैं इनकी कि ये जो है वो प्लांट पर भी जो है वो फीड कर सकती हैं। और जो है ये कुछ जो है वो स्ट्रिक्टली प्रेडेटर हैं, सीज प्रे विद पेडिपल्स एंड इंजेक्ट प्रे एज डिस्क्राइब इन अदर अरेक्निड्स। जो डाइजेशन है इनके अंदर वो बहुत इंटरनल एक्सटर्नल है और इंटरनल है। स्पर्म्स जो हैं वो इसी तरह से पाइनस लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं और फीमेल जो है वो ओविपोस्टर है, एग को ले करती है और एग को जो है वो अपने ग्राउंड के अंदर सॉइल के अंदर जो है वो डिपॉजिट करती है जहाँ पर एग जो है अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीट करके जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ऑर्डर अकैरिनिया। अकैरिनियाज आर द माइट्स एंड टिक्स। They are the ectoparasites of both human and domesticated animals. They are free living in both terrestrial and aquatic habitats. Of all arachnids, acarines have had the greatest impact on human health and welfare. Mites की जो size देखें body size are 1 millimeter or less in length.
Prosomas and ophisma are fused and covered by single carapace. Chelicerates and pedipalps are variously modified for pursing, biting, and anchoring and sucking, and adults have four pairs of walking length. Free living mites are the herbivores or scavengers. Herbivores mites such as the spider mites damage ornamental and agriculture plants. Scavenger mites are among the most common animal in soil and in leaf litter. These might include some pest species that feed on flour, dried fruit, hay, cheese, and other animal furs. Parasitic mites usually do not permanently attach to their host but feed for a few hours or day and then drop to the ground. One mites, the notorious checkers and red bugs, is a parasite during one of its larval stage on all ground of the terrestrial vertebrate. A larva enzymatically break down and suck host skin, causing local inflammation and intense itching at the side of the bite. Few mites are permanent ectoparasites. Follicle mites आ जाती हैं जिसमें that is common but harmless in hair follicles of most of the raiders of this sex. Um, it might cause scabs in human and other animals. It tunnels in the epidermis of human skin where female lay about 200 20 eggs each day. Secretion of the mites irritate the skin and infection are required by contact with an infected individual. Ticks are ectoparasites, right? During their entire life they may be up to 3 centimeter in length, but otherwise similarly to mites, hooked mouth parts are used to attach their host and to feed in blood. The female ticks whose bodies are less sclerotized and then those of male expand with gourd with blood. Copulation occur in host and after feeding female drop to the group ground to lay eggs. Eggs hatch into six legless immature called seed ticks. Immature feed on host blood and drop to ground for each molt. Some ticks transmit disease in humans and domesticated animals. Others are less harmless. Other orders of the arachnids include wisps, scorpion, whip spiders, and pseudoscorpions and others. नेक्स्ट जो है वो क्लास पाइक्नोगोंडिया है. These are the less common, include the sea spider. Sea spiders are included. They all are marine and worldwide but less common, most common in cold water. Pycnogodia live on the ocean floor and frequently feed on cnidarians, polyps, and ectoparasites. Other tear at prey with their first pair of appendages called chelophores. Pycnoids are dioecious. Gonads are U-shaped and branch of the gonads extend into each leg. Gonophores are one of the pair of the legs. As the female release egg, the male fertilize them and the fertilized egg are cemented into spherical masses and attached to pair of elongated appendages of the male called the oviculars where they are broad until hatching. So this is all about the uh, order. दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्लास अरैक्निड्स. स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो क्लास अरैक्निड्स के ऑर्डर्स जो हैं, क्लास अरैक्निड्स के करैक्टर्स और क्लास अरैक्निड्स के जो ऑर्डर्स थे फर्दर उनको जो है वो हमने डिस्कस किया है. होपफुली आपको जो है वो समझ आ गई होगी. कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो वो आप जो है वो मुझसे जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो पूछ सकते हैं फ्रिक्वेंटली, लेकिन इनको साथ साथ आपने याद करना है. थैंक यू.